Hello friends, last time we have discussed about the heat transfer and the first part of heat transfer as a heat conduction, and also we have derived the equation related with the thermal conduction, we can say heat conduction also, for related with heat transfer. The first part is thermal conduction. And related with the thermal conduction, we have derived the equation for heat current. Heat current we can denote as a H, otherwise we can say it is delta Q upon delta T, and that is Ka. If we are adding positive sign, then it should be higher minus lower value, T1 minus T2 upon L. One more equation we have derived related with the resistance. We can say thermal resistance. And formula for the H only. That is also delta Q upon delta T. Then equation is T1 minus T2 upon RH, where RH is called thermal resistance and its equation we can say L by Ka. Then from this equation we can say thermal resistance is directly proportional to the length. It is inversely proportional to the constant. कौन सा constant है? It is called thermal conductivity, and inversely proportional to the area. Means thermal resistance is directly proportional to the length, inversely proportional to the conductivity, thermal conductivity, and inversely proportional to the area. चलो अब उसी से रिलेटेड थोड़ा आज हमें इसका कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स हमें डिस्कशन करनी है रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस से सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का हमारे पास उसका टोटल रेजिस्टेंस का इक्वेशन है। तो व्हेनेवर टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, whenever two resistors are connected in parallel, then what is the equivalent value of resistance? So for series we can say it is direct R is equal to R1 plus R2. For the parallel connection of resistors, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. और ये उससे जितने भी हमें कनेक्शन में दिए हैं, तो इसी से रिलेटेड हमें थोड़ा बहुत इसका एक्स्ट्रा एक चीज करनी है। Whenever two conductors, जो भी यहाँ पर हमें लेने हैं, two conductors are connected in series, and whenever two conductors are connected in parallel, what about its equivalent thermal conductivity? रेजिस्टेंस की इक्वेशन तो है हमारे पास, उसकी हेल्प से हमें डिराइव करनी है उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर रेजिस्टेंस का डायरेक्ट R1 प्लस R2 है फॉर द सीरीज, तो जो कंडक्टिविटी होगी डायरेक्ट होगी K1 प्लस K2 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए हमें वो उसका डिस्कशन करना है, डिराइव करना है। तो पहले करते हैं फॉर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन ऑफ two conductors of same length and same area. ये जो है कि two conductors are connected in series of same length and same area. इसका मतलब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि चलो ये कोई भी हमारे पास ऐसे two conductors सोच लेते हैं of same length and same cross section area with different conductivity K1 and K2. Maybe one made up of copper, second made up of iron, otherwise aluminium, whatever it is, having different conductivity. Then what about this equivalent conductivity? तो जो हम उसके MCQ सॉल्वर में इसका हम यूज कर पाए। तो यहाँ पर जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो अब
एग्जाम में हमें पता कैसे चलेगा कि जो भी कनेक्शन दिया है वो सीरीज टाइप का है कि पैरेलल टाइप का, क्योंकि वर्डिंग कुछ ऐसे लिखे नहीं होंगे एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, तब उसकी हीट जो ट्रांसफर होती है वो देखो। व्हेनेवर हीट ट्रांसफर द पाथ ऑफ हीट ट्रांसफर इज सेम थ्रू आउट, तो यहाँ पर पाथ उसका एक ही होगा, यहाँ से जो भी हीट जाएगी और बाकी की हीट जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। देन पाथ ऑफ द हीट करंट या पाथ ऑफ द हीट थ्रू आउट इज सेम, देन इट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन। अगर सीरीज कनेक्शन है तो अगर ऐसा सोच सकते हैं हम, अगर यहाँ पर ऐसे थ्रू आउट हीट जो है वो सेम है, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में हमारे पास इक्विवेलेंट तो है, resistance is R1 plus R2. To derive the equivalent conductivity, we will always take help of series connection of resistors. तो series connection of resistors क्या है? R is equal to R1 plus R2. चलो what about R? It is L by Ka. Then length L, it is K1A plus L upon K2A. Now think about the left hand side. Equivalent resistance R. Equivalent मतलब ऐसे दोनों का कंबाइन, तो दोनों का कंबाइन करेंगे, देखो लेंथ हो जाएगी 2L, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम 2L। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज K और क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही रहेगा, आया समझ में। फॉर द राइट हैंड साइड बोथ आर सेपरेटेड, L by K1A, L by K2A, but for the left hand side for equivalent resistance, equivalent conductivity, the total length is 2L and Ka. Just common out L by A, then 1 upon K1 plus 1 upon K2, it is 2L upon Ka. Then L by A cancel, then we can say 2 upon K is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. This is the most general equation for series connection of two conductors for the equivalent conductivity. वैसा नहीं कि हमें यह आंसर छोड़ देना, हमें तो चाहिए की का आंसर, लेकिन ये एक इक्वेशन भी जनरल इक्वेशन। अगर यहाँ पर एक और होता जैसे L और K3 से रिलेटेड, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि लेंथ हो जाएगी 3, देन 3 by K is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus 1 upon K3. ओके, ऐसे डिराइव कर सकते हैं। चलो यहाँ से अगर हमें K की वैल्यू करनी है, थर्मल कंडक्टिविटी K, तो इसको सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, इट इज K1 plus K2 upon K1 K2. Then what about the equivalent conductivity? K is equal to 2K1 K2 upon K1 plus K2. अब अगर यहां से तुम जनरलाइज इक्वेशन बोलो तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 3 rods are connected in series, we can't say it is 3K1 K2 K3 upon K1 plus K2 plus K3, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एलसीएम लेना होगा और एलसीएम आएगा K1 K2 and K3, तब जाके यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लेना पड़ेगा। तो मोस्ट जनरल इक्वेशन फॉर सीरीज कनेक्शन इज फॉर 2 rods of same length and area, then 2 by K is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2। और अगर डिफरेंट लेंथ और एरिया कुछ दे रखा है तो फिर इक्वेशन ये यूज करो, मेन इक्वेशन अभी जो हमने डिराइव की है कि K is equal to 2K1 K2 upon K1 plus K2 for 2 rods of same length and same cross section area connected in series, इसके लिए है। ये भी सेम लेंथ और सेम एरिया के लिए, लेकिन अगर लेंथ डिफरेंट है, एरिया कुछ अलग अलग है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें अलग इक्वेशंस की तरह से तो मेन इक्वेशन ही यूज करो, R is equal to R1 plus R2 से L की वैल्यू अलग रखो और फिर पूरा डिराइव करो। ओके, चलो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं फॉर पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन ऑफ द टू रोड्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया। तो पैरेलल कनेक्शन में कुछ ऐसा हम इमेज कर सकते हैं, these two roads of same length, same area but different conductivity and connected like this, और हीट ट्रांसफर कुछ ऐसे लेफ्ट टू राइट है। तब क्या होगा, देखो whenever heat transfer due to different conductivity heat is divided into two parts, मतलब दो पार्ट बनेंगे अब हम, और यहां से होकर फिर वापस कंबाइन हो जाएगी। तो whenever heat divided into two parts, या heat current divides into two parts, they are imaged to be in parallel connection। तो ये दोनों parallel connection में बोलेंगे। अगर throughout heat का path same होगा then series path different होगा then it is parallel connection। तो parallel connection में resistance की इक्वेशन है हमारे पास 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2। यहाँ पर R1 के लिए then R is equal to L by K, लेकिन अगर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स, मतलब K1A upon L plus K2A upon L। What about the left hand side? तो यहाँ पर लेंथ तो एक ही रहेगी, बट अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए करें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे then its cross section area is 2a, then we have to write k into 2a upon l, length तो एक ही रहेगी। ओके, a upon a कॉमन निकाल दो, it will be cancelled, then it is 2k is equal to k1 plus k2, then equivalent conductivity is k1 plus k2 by 2। अब यहाँ पर अगर 3 roads हैं of same length area in parallel, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि k1 plus k2 plus k3 by 3। इसके लिए तुम बोल सकते हो for parallel connection directly you can say equivalent conductivity more than 2 roads के लिए भी k1 plus k2 plus k3 by 3, 4 होंगे तो k1 plus k2 plus k3 plus k4 by 4 कर सकते हो, लेकिन लेंथ सेम एरिया भी सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर मेन इक्वेशन से आगे बढ़ो। ओके, तो ये हुई सीरीज कनेक्शन की इक्वेशन, दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। ओके, चलो अब यहाँ पर एक और चीज करें हम एक्स्ट्रा में कि तुम्हें कुछ कनेक्शन ऐसा दे रखा है कि चलो ये कोई भी एक रॉड है K1, ये K2 और ये K3, लेंथ दोनों की सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी सेम, मतलब यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं 2a, है ना, क्योंकि अगर दोनों का a हुआ ये तो दिस इज 2a, लेंथ दोनों की सेम, देन इट इज एज ए 2l। तो अब यहां पर हमें करना है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कि व्हेनेवर जो हीट करंट पास होगी वो यहां से यहां तक, इसका मतलब यहां से यहां तक में हीट जो पाथ है वो सेम है, फिर यहां पर डिवाइड होगा, डिवाइड हुआ मतलब पैरेलल, देन व्हाट वी कैन से हियर K2 and K3 आर इन पैरेलल, और उसका जो इक्विवेलेंट आएगा विद K1 इज इन सीरीज। ओके, बोलो क्लियर। फिर से अगर ऐसे हीट करंट हम यहां से यहां तक सोचे तो यहां से यहां तक हीट का पाथ एक ही होगा, देन डिफरेंट कंडक्टिविटी इज डिवाइडेड, तब यहां से फिर वापस जॉइंट भी होगा, देन K2 and K3 इज इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमारे पास इक्वेशन है K1 plus K2 by 2, बट हियर इट इज K2 plus K3 by 2। तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज K2 plus K3 by 2। ओके, चलो अब यहां पर जो आएगा वो बोल सकते हैं हम K' जो आएगा इसका इक्विवेलेंट, और K1 इज इन सीरीज,
तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का 2a हो जाएगा, ये भी इक्विवेलेंट हुआ, दैट एरिया 2 है, इसका भी 2 है, तो वैसे तो यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, जो भी एरिया a है या 2 है, मतलब अब डायरेक्ट लिखे देन इट इज 2/k इज इक्वल टू 1/k1 and 1/k2, मतलब k dash, because k dash and k1 are in series, then equivalent is 2/k is equal to 1/k1 plus 1/k dash। चलो तो k dash की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2/k2 plus k3, हमें तो चाहिए k की वैल्यू, then 2/k is equal to इसका एलसीएम ले लो, then it is 2k1 plus k2 plus k3 upon k1 k2 plus k3, okay। चलो then what about the k equivalent conductivity क्या होगी अब, what about the equation for the k, then it is 2k1 k2 plus k3 upon 2k1 plus k2 plus k3। अदरवाइज इस इक्वेशन से भी तुम कर सकते हो 2k1 k2 upon k1 plus k2 से, तो 2k1 जो k2 है हमारा दैट इज k dash, और k dash हमारा है ये k2 plus k3 by 2, तो 2k1 k2 plus k3 by 2 आएगा, और नीचे क्या होगा k1 plus k2, तो k1 plus k2 plus k3 by 2, इसका एलसीएम लोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ओके। और 2 जो है वो ऐसे दोनों के डिनोमिनेटर से कैंसिल भी हो जाएगा, तो कोई भी इक्वेशन से तुम कर सकते हो। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे हम इक्विवेलेंट, ये एक्स्ट्रा में ऐसे सोचा कि हाउ कैन वी डिराइव द थर्मल कंडक्टिविटी, अगर ऐसे 3 कॉम्बिनेशन दे दिए, चलो यही कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा दे देते सेम है, ये k1 ये k2 है, k3 है, और हीट जो ट्रांसफर है वो ऊपर से नीचे हो रहा है, कि ऊपर से नीचे ऐसे ट्रांसफर हो रही है हीट, देन इनिशियली हीट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, और यहां जो हीट जाएगी वो थ्रू आउट सेम होगी, मतलब k2 and k3 इज इन सीरीज एंड उसका जो इक्विवेलेंट मिलेगा इट इज पैरेलल विद k1, क्लियर। देखो हीट यहां से ऐसे जा रही है तो k2 k3 पैरेलल, उसका इक्विवेलेंट k1 के साथ सीरीज में, अगर हीट ऊपर से नीचे आएगी देन k2 and k3 में जो हीट आएगी वो थ्रू आउट सेम, देन k2 and k3 आर इन सीरीज, उसका इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो k1 के साथ पैरेलल है, और वो तुम्हें इक्वेशन डिराइव करनी है। अब उससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई ना, तो उसका जो भी हमने लेंथ लिया कैसे, इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्ट्स फ्रॉम वेयर हीट एंटर एंड फ्रॉम हीट लीव्स, इट्स कॉल्ड एज ए लेंथ L। इसका मतलब यहाँ ऊपर से हीट नीचे ट्रांसफर हो रही है, देन यहां से हीट एंटर हुई, यहां से बाहर निकली, देन दिस डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज ए लेंथ। तो अगर इसकी लेंथ में L ले लो, इसकी लेंथ L लो, देन टोटल लेंथ इज 2L। समझ में आया? जैसे हमने यहां पर बोला ये लेंथ हमने कैसे ली, तो हमने एक ऐसा पूरा बार 3 डायमेंशन में ड्रॉ किया था, तो बोला d1 d2 एंड दिस इज द लेंथ। तो लेंथ मतलब कैसे लेंथ कंसीडर करेंगे, तो सोचेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्ट्स फ्रॉम वेयर हीट एंटर्स एंड थ्रू वेयर हीट लीव्स, इट्स कॉल्ड लेंथ। इसको हम लेंथ बोलेंगे, और बाकी का जो है वो उसको हम एरिया कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया, अगर इसका एरिया A कंसीडर करो और इसका भी एरिया A कंसीडर करो, ऐसे तो दोनों का एरिया सेम, लेकिन जहां से हीट एंटर होती है जहां से बाहर निकले उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज लेंथ, इसीलिए हमें उसको लेंथ कंसीडर करनी है। इसका मतलब तुम डायरेक्ट एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हमने बोला था
कि फ्लो ऑफ हीट ऐसे जो सन की रेज आ रही है ऊपर से, हाँ, हमारे रूफ में से जो भी हीट एंटर हो रही है रूम के अंदर, अगर उसको हमें थोड़ा डिक्रीज करना है तो क्या करते हैं ऊपर, हमने बोला कि चाइना मोज़ेक एक और लेयर लगा देते हैं, है ना, तो उसमें थिकनेस बढ़ेगी। अब वो जो थिकनेस है उसको हमें लेंथ के टर्म्स में लेना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हीट एंटर होगी और नीचे से बाहर निकलेगी, लाइक दिस। यही सोचो कि यही एक हमारा ऐसा एक रूफ है, इतना थिकनेस वाला हमने लेयर लिया, अब हीट ऊपर से एंटर हुई, नीचे से निकली, तो ये जो आया दिस इज कंसीडर्ड एज ए लेंथ। और इसीलिए वहां पर दो लेंथ कंसीडर करेंगे, एक कंक्रीट का थिकनेस होगा, दूसरा जो होगा वो चाइना मोज़ेक का होगा जो अलग मटेरियल है। तो दोनों जो है वो सीरीज में आ जाएंगे, पहले चाइना मोज़ेक मटेरियल से आएगा, फिर कंक्रीट में से, और फिर रूम के अंदर आएगी हीट, है ना। तो वहां पर वो जो दो है उसका जो थिकनेस है वो लेना है हमें एज ए लेंथ, लाइक दिस। कुछ ऐसा हमारा रूफ हुआ और ये कुछ हो गया हमारे लिए, इसकी हीट यहां से यहां है, तो ये जो होगा वो लेंथ कंसीडर करेंगे और बाकी का हीट जो है वो हम एरिया ले लेंगे। तब यहां पर ध्यान रखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लेंथ को किस टर्म्स में हमें लेना है, क्योंकि तुम्हें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दी होगी, इसके लिए ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो हाइट यहां पर हम L कंसीडर करेंगे और बाकी का जो भी मल्टीप्लिकेशन करो बाकी के दो साइड्स का, दिस इज कॉल्ड एरिया। ओके, और वही हमें यहाँ पर भी यूज करना है। बोलो क्लियर? ये जो है एक्स्ट्रा याद रखो, क्योंकि ये हमें यूज करना है एमसीक्यू सॉल्विंग में, प्लस जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें भी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब टू रोड्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, टू रोड्स कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे होगी। और ये पार्ट जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क में, अगर ये ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वेशन क्या होगी, तो ऐसे बोल सकते हो कि दिस टू आर इन सीरीज और उसके साथ K1 इन पैरेलल। ओके।